Hello everyone, welcome to my YouTube channel Astha Educare. So friends, we have received a notification regarding the PhD program in GNU, but it is right now it is for the exempted category, only for the GRF category. So still the prospectus which is available on the website, it's for all, means when the entrance PhD examination will happen through the entrance examination as well as GRF category, both are given in this prospectus. So if somebody is looking for the whole information, can go through this. It's a long prospectus containing around 108 pages. So but it has the information of all the departments, all the seats under the various categories. So right now we have received the notification under the GRF category, so we will focus only on those. But after, when the the combined kind of a the open category, when it will happen, we will go through again for this. Okay, right now we will focus only for the GRF category. So देख लेते हैं क्या क्या है. ई prospectus for Doctor of Philosophy and Diploma of Proficiency academic session 2023 and 2024. तो ये GRF कैटेगरी के अंडर में निकला है. अभी दोबारा से फिर से निकलेगा जब ओपन कैटेगरी का होगा, क्योंकि हमेशा कुछ सीटें GRF कैटेगरी की होती हैं, कुछ ओपन की होती हैं, जिनमें जिसका कोई फेलोशिप नहीं भी क्वालिफाई है, तो वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू इंटरव्यू दे करके देन वो क्वालिफाई करता है. बट अभी जो निकली है वो GRF कैटेगरी की, यानी कि उनको सिर्फ फॉर्म भरना है और डायरेक्टली दे विल गेट द इंटरव्यू कॉल एंड दे हैव टू अपीयर ऑन दैट डेट. ठीक है. Only those students who fulfill the minimum eligibility requirement as prescribed for the admission of candidate to the PhD program as mentioned in the respective school center have qualified for the GRF of CSIR का हो या UGC का हो, ICMR का, आयुष का, DBT examination are eligible to apply separately in the prescribed form on the under this category in the respective school department through GRF category. The link for this category will be available on the GNU website. Such candidate shall be exempted from appearing in computer based test CBT. Candidates shall have to appear only for the interview and their selection will depend on their performance in the interview. Candidate who have appeared in these examinations but results awaited can also apply under this category. Please note that candidate who have been awarded lectureship, यानी जिनका सिर्फ lectureship क्वालिफाई है, ओनली UGC नेट क्लियर है, GRF नहीं क्लियर है, CSIR नेट क्लियर, GRF नहीं क्लियर है, वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दिस शुड बी इन योर माइंड कि अगर आप GRF नहीं क्वालिफाई हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस टाइम. आप जब ओपन कैटेगरी का आएगा सबके लिए विद एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तब आप अप्लाई करना. देयर GRF सर्टिफिकेट नॉट वैलिड एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन. ठीक है. तो एडमिशन ऑफ गेट होल्डर्स टू द PhD प्रोग्राम, तो जिनका गेट है, बेसिकली जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं उनका गेट होगा. तो अगर गेट क्वालिफाई है, दे आर स्टिल एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस. उनके लिए एक सेपरेट कैटेगरी दी है, सेपरेट लिंक होगा. ओनली दोज स्टूडेंट हु फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एज प्रिस्क्राइब फॉर द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट टू द PhD प्रोग्राम एज मेंशन फॉर द PhD स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड क्वालिफाइड फॉर गेट फेलोशिप आर एलिजिबल टू अप्लाई सेपरेटली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अंडर दिस कैटेगरी. The link for this category will be available on the GNU website. Intake is given. तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो प्रोस्पेक्टस के सबसे लास्ट में दी गई हैं. लास्ट में दी गई है, विद एंट्रेंस वाली भी दी गई है, विदाउट एंट्रेंस वाली दी गई है, डायरेक्ट GRF वाली भी दी हैं और गेट वाली भी दी गई हैं. ठीक है. तो वी विल गो थ्रू दैट. देख लेते हैं. 4 अगस्त इसकी लास्ट डेट है. सिर्फ GRF वालों को अप्लाई करना है अभी इस टाइम पे. जब दोबारा से ये CUT ET के थ्रू आएगा तब हम फिर से गो थ्रू कर लेंगे इसके रिगार्डिंग. सो सिलेक्शन, एक और चीज़ दी है, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर एडमिशन. द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम हैव टू अपीयर इन द CBT मोड. अच्छा, ये पहले का है, नो नीड. ये उसका है जब आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन वालों के लिए ओपन होगा. ठीक है.
JRF qualified candidates shall be exempted from CBT test. They are required to apply separately under the, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये जो प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, जो ब्रोशर्स अवेलेबल है, इसमें ओवरऑल सबका है, क्योंकि ये बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगी, एक बार आएगी JRF की BC में, बाकी लोगों की BC में। ठीक है, तो हमको जाना है एडमिशन ऑफ JRS होल्डर्स टू द PhD प्रोग्राम। Admission of gate holders to the PhD program in the School of Engineering, GNU e-prospectus। आई थिंक व्हाट इज़ मोर रिक्वायर्ड फॉर अस इज़, देख लेते हैं इनटेक कितना है, कितनी सीट्स हैं, क्योंकि अभी सिर्फ JRF वालों के लिए जो ऑलरेडी क्वालिफाई हैं, दे हैव टू अप्लाई सेपरेटली ऑन द लिंक मेंशन ऑन द वेबसाइट एंड वेट फॉर द इंटरव्यू कॉल। बाकी जिसको चाहिए मैं लिंक डाल दूंगा, वो पूरा प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। इवन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए गए, उनकी ईमेल आईडी दिए गए। इफ़ यू वांट टू हैव सम इंफॉर्मेशन, वांटेड टू नो द मेथड ऑफ teaching, method of process and everything, you can contact them as well। हम डायरेक्टली आ जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स पे, नंबर ऑफ़ सीट्स इन JRF कैटेगरी। बाकी तो हमें अभी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, ये दिए गए। सो PhD थ्रू नेट JRF, ऊपर लोगों किसी ऊपर ओपन कैटेगरी की दी है, जब वो आएगा कि भाई सबके लिए थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी हम ये देख लेते हैं PhD थ्रू नेट JRF। स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, सेंटर फॉर कनाडियन, US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी, PhD इन यूनाइटेड स्टेट्स स्टडीज़, UR की 1 सीट है। सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट। सो इसमें भी 3 कैटेगरी, आई थिंक 4 हैं। PhD इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1 कैटेगरी UR की है, टोटल 1 कैटेगरी है। सीट्स बहुत कम रहती हैं JNU में, अब सीटें बहुत कम रहने लगी, पहले बहुत सीटें आती थी, बट राइट नाउ क्या है, आफ्टर द NDA गवर्नमेंट, सीट्स हैव डिक्रीज्ड a lot। So PhD in diplomacy and disarmament, 2 seats, 1 for EWS, 1 for OBC, 2 for UR and 1 for SC, total 5 seats only। PhD in political geography, 1 seat UR। Center for Inner Asian Studies, PhD in Inner Asian Studies, only 1 seat, 1 seat in UR। PhD in Human Rights Studies, only 1 seat UR। PhD in Energy Studies, 1 seat। School of Social Sciences, 2 seats। PhD in Economics Studies and Planning में UR की 2 सीट्स हैं, 2 सीट हैं आपकी OBC की, टोटल 7 सीट हैं, एक EWS की भी है। ठीक है, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, इसमें भी 3 हैं, 3 ब्रांचेस, PhD in एंशिएंट हिस्ट्री, PhD in मीडियल हिस्ट्री। ये चीज़ें आप खुद से देख सकते हो। PhD in एंशिएंट हिस्ट्री में UR की 1 सीट है, और 1 सीट शायद है EWS की, नहीं टोटल 1 ही सीट है। मीडियल में भी 1 ही सीट है, जो भी UR की है। मॉडर्न हिस्ट्री में 2 सीट हैं UR की, 1 है शायद SC की और 1 है OBC की, और 1 EWS की भी आई थिंक। टोटल 7 सीट्स हैं। ऐसे करके सब में सीटें अलग अलग मेंशन की गई हैं। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दोज। ये देख लेते हैं ये 12 सीटें किस में दी गई हैं। PhD इन फ़िलासफ़ी, सेंटर ऑफ फ़िलासफ़ी में टोटल 12 सीट्स हैं, 5 है UR की, 2 है SC की, 3 है ST की, नहीं OBC की है, 1 EWS, 1 SC की। मीडिया स्टडीज़ में टोटल 5 सीटें हैं, 2 UR की हैं, 2 UR की हैं, 1 SC की है, 1 OBC की है और 1 EWS की है, ST की नहीं है। Reservation of 5% seats in respective PWD shall be done horizontally। तो रिजर्वेशन की जो क्लॉज हैं वो एज़ पर द गवर्नमेंट पॉलिसी चलेंगे। ठीक है, और भी आगे दिए गए हैं, लैंग्वेज वाले में भी है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़, PhD इन फ्रेंच, टोटल 4 सीट हैं,
PhD in German, total 5 seats हैं. PhD in Urdu, total 4 seats हैं. PhD in Russian में 7 seats हैं. स्पेनिश में 3 सीट्स हैं. PhD in Japanese 2 seats. Chinese 8 seats, 3 UR की है. Persian 8 seats. English 8 seats. PhD in Computer Science, total 18 seats. 7 seats for UR, 5 for OBC. So 18 number, 18 seats are good number seats available in JNU. PhD in Microsystems 2 seats. And School for Environmental Studies में these are area 1, area 2, area 4. They are basically those who are from the background, they know much about it, what is area 1, area 2, area 3, area 4. So these are the number of seats in various categories. School of Life Sciences, इसमें भी जो ग्रुप 1 की सीट्स हैं 4 सीट्स हैं, ग्रुप 2 की सीट्स हैं 3 सीट हैं, ग्रुप 3. बेसिकली ये सारी लाइफ साइंसेस की, जो लाइफ साइंस के बच्चे हैं दे नो मच अबाउट इट. स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंस की 8 सीटें, केमिकल साइंस की 8 सीटें, मैथमेटिक्स की 4 सीट्स हैं. PhD इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग 3, 4, 5, 4 सीटें टोटल. स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 10 सीटें, मॉलिक्यूलर मेडिसिन की टोटल 8 सीटें, लॉ इन गवर्नमेंट्स की टोटल 12 सीटें, सेंटर फॉर नैनो साइंस 9 सीट्स हैं, स्पेशल सेंटर फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टडीज़ 3 सीट्स हैं. PhD स्कूल फॉर इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस की 7 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की 4 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 3 सीट्स हैं. थ्रू गेट, तो जिन लोगों का गेट क्लियर है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए भी है. PhD इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, टोटल 4 सीट्स हैं. PhD इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टोटल 4 सीटें हैं. पार्ट टाइम भी दी गई हैं, ये भी आप देख सकते हो. बेसिकली जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोरियन स्टडीज़, मंगोलियन स्टडीज, हिब्रू, अफ्रीकन स्टडीज़. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द लैंग्वेज, इट्स मोस्ट रिलेटेड टू कल्चरल. स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज़ 10 सीट्स हैं. टोटल 44 सीट दी गई हैं भाषा इंडोनेशिया में, 18 सीट्स यूआर की. वाओ. So this was only for the JRF category. 4 अगस्त इज़ लास्ट डेट. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मेंशन है. Still, if you have any doubt, please put your question in comment box. Thank you so much, friends. JNU best university है in terms of research and everything. Campus बहुत अच्छा है, it's a lush green campus, peaceful campus. I have visited. If you have any doubt regarding the location, availability, things around, let me know in comment section. Thank you so much, friends.